Good afternoon, student. ମୁଁ ୟୁସ୍ପିନା ନାୟକ କେସିପି ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲ ଗିରିଙ୍କାଲାର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତମମାନଙ୍କୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ରେଚନ ଚ୍ୟାପ୍ଟରର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ରେଚନ ଆମର ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ଖାଉଛୁ ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ଅତି ଜରୁରୀ। ତେଣୁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରରୁ ଏହି ସବୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ନହେଲେ ଆମର କେତେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ରେଚନ ଚ୍ୟାପ୍ଟରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିସାରିଛୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରେଚନ ଚ୍ୟାପ୍ଟରର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। 4 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ରେଚନ ଚ୍ୟାପ୍ଟରରେ କେଉଁ କେଉଁ 4 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆମେ 4 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆମର ପ୍ରାୟ ଯାହା ସବୁ 4 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତାପରେ ଆମର 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ପୁଣି 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମର 25ଟା 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର ପଡୁଛି। ଆମର 2ଟା 4 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବଂ 3ଟା ଆମର 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ 4ଟା ଆମର 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 4ଟା ଆମର ସେଥିରେ ଥାଏ। ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା। ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରି ଶରୀରର ଅନ୍ତଃ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରଖିଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କହିଥାଉ ଆମେ ରେଚନ। ତାହେଲେ ଏହି ରେଚନରେ ମୁଖ୍ୟ ରେଚିତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ ରେଚିତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରରୁ ଆମର ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏମୋନିଆ, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, ୟୁରିଆ। ଏମୋନିଆଟି ଆମର ପ୍ରାୟ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବା ଏମୋନିଆ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ନା। ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ସରୀସୃପ ପତଙ୍ଗ ଏମାନଙ୍କର ମଳ ସହିତ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ତମେ ଦେଖିଥିବ ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ପାରା କାଉ ଇତ୍ୟାଦି ମାନଙ୍କର ମଳ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ, କାରଣ ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ବହଳିଆ ଅଂଶ ସହିତ କିଛି ପାଣି ଅଂଶ ଥାଏ। ତାହେଲେ ସେଇ ମଳ ସହିତ ସେଇ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ଟା ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବାହାରିଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁରିଆ। ୟୁରିଆ ପ୍ରାୟ ଆମର ଯେତେକ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ମଣିଷ, ବେଙ୍ଗ, ସାର୍କ ତା ସହିତ ମୂତ୍ର ସହିତ ଆମର ୟୁରିଆ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଆମେ ଦେଖିବା ଏମିବା ପରି ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ଲାଜମା ଝିଲ୍ଲି ଏବଂ ସଂକୋଚିକି ଧାନି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ରେଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ପଞ୍ଜ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଆମର ସ୍ପଞ୍ଜ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରେଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ କିଛି ନାହିଁ। ଚେପ୍ଟାକୃମି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଶିଖା କୋଷ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ କରିଥାନ୍ତି। ଜିଆ ଏବଂ ଜୋକ ମାନଙ୍କର ଥାଏ ନେଫ୍ରିଡିଆ। ତାର ଯେଉଁ କାୟାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେ ଭିତରେ ନେଫ୍ରିଡିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ନେଫ୍ରିଡିଆ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ରେଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଝିଣ୍ଟିକା ଆଦି ପତଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ମାଲପିଜିଆନ୍ ନଳିକା। ଆମେ ପୋଷଣ ଚ୍ୟାପ୍ଟରରେ ବି ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ପଢି ସାରିଛୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ରେଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଆମର ପ୍ରଧାନ ରେଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ତାର ହେଇଥାଏ ବୃକକ୍ ଦ୍ୱାରା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ରେଚନ କ'ଣ? ଆମର ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରେଚନ କ'ଣ ଏବଂ ରେଚନର ଆବଶ୍ୟକତା ଲେଖିବା। ରେଚନ ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିସାରିଲିଣି ତମକୁ ଯେ ଶରୀରର ଚୟାପଚୟରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଶରୀର ପାଇଁ ହାନିକାରକ। ଶରୀରରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରି ଶରୀରର ଭିତର ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରଖିଥାଏ। ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ରେଚନ। ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିବା।
नेक्स्ट आम आ गोटे क्वेश्चन अच्छी कौन रेचन आवश्यकता ताहले रेचन तंत्र माध्यम शरीर निष्कासित होता एमोनिया यूरिया यूरिक एसिड जातीय वर्ज्यवस्तु निष्कासित होता है शरीर में जल और धातव लवण आदि पदार्थर संतुलन बजाय रही है जितेबले यह सब पदार्थ निष्कासित हुए सेतेबेले शरीर जल और धातव लवण आदि पदार्थ संतुलन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलचर और स्थलचर प्राणींकर रेचन प्रक्रिया रे पार्थक्य कौन अच्छी बा तार कौन पार्थक्य अच्छी। प्रथमे आम देखा जलचर प्राणी कौन होता है ना तांको शरीर उत्पन्न होता एमोनिया को विसरण प्रक्रिया माध्यम सीधा सलख जलीय परिवेश को निष्कासन कर किंतु स्थलचर प्राणी मान शरीर में जो जात होता एमोनिया को एमाने कौन करती ना यूरिया बा यूरिक एसिड रे परिणत कर शरीर निष्कासित कर पार्थक्य आम देखिले जदि आम एमती लिखा हेले ठीक नहेले आम कौन करवा जलचर प्राणी गोटे साइड आम बॉर्डर लाइन देदेबा जलचर प्राणी रेचन एवं आम स्थलचर प्राणी रेचन कहीकि दीटा दी साइड रु लेखिकी माने आम लिखिले बेसी आमर भल होता है। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन होची मनुष्य शरीर में थिबा रेचन अंग गुड़िकर नाम लेख। मनुष्य शरीर में आम समस्ते जानू यही चारोटी आम रेचन अंग रही प्रथमे है वृकक 2 नंबर है यकृत 3 नंबर है फुसफुस आ 4 नंबर है चर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरुदंडी प्राणी मानकर मूत्र किपरि प्रस्तुत हुए। मेरुदंडी प्राणी मानकर यकृत रे एमोनिया एवं अंगारकाम्लर रासायनिक संयोग हो यूरिया उत्पन्न हुए। सर्ट क्वेश्चन रे बेटा पड़े पिला माने मने रखिबो जे एमोनिया एवं अंगारकाम्लर रासायनिक संयोग हो यूरिया उत्पन्न हुए केउठारे हुए यकृत रे केबे भी भूल रे तमे सेठारे वृकक लिखिबो नाही। नेक्स्ट है यूरिया जल रे द्रवणीय तेणु जल रे मिसी रक्त रे मिसी यह वृकक रे पहुंची थाए एवं वृकक रे रक्त यूरिया अलगा हुए एवं जल रे द्रवीभूत होई मूत्र सह शरीर रु बाहरी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतंग विहंग सरीसृप आदि प्राणी कहीं रेचन प्रक्रिया रे अधिक जल क्षय करती नहीं। पतंग विहंग और सरीसृप माने एमोनिया रु यूरिक एसिड तैयारी करिथांती एवं यूरिक एसिड बा यूरिक अम्ल जल रे प्राय द्रवणीय तेणु शरीर निष्कासन करती। तेणु मूत्र यूरिया परे यह द्रवण रु सहजरे अलगा हो जाए एवं द्रवण रे थिबा जल आमर द्रवण रे थिबा जल रक्त भीतर को पुनः शोषित हो जाए। तेणु पतंग विहंग एवं सरीसृप आदि प्राणी कौन करती रेचन प्रक्रिया रे अधिक जल क्षय करती नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत को रेचन अंग कहिबार कारण कौन कहीं आम यकृत को रेचन अंग कहिबा कारण यकृत किछि वर्ज्यवस्तु निष्कासन करिबारे सहायक होता है। कौन कौन वर्ज्यवस्तु निष्कासन करे चयापचय सृष्टि वर्ज्यवस्तु यथा खाउथिबा औषधर अवशिष्टांश मात्राधिक विटामिन लोहित रक्त कणिकार विखंडन प्रक्रिया रे जात वर्णकणा एवं आदि पित्तरस सह मिसी खाद्य नली भीतर को जाए एवं परे मल सहित ताहा निष्कासित होता है। नेक्स्ट आम देखा फुसफुस को कहीं रेचन अंग कहा जाए। आम जितेबले श्वासक्रिया संपन्न करुचु तमे एठारे देखुथबो जितेबले आम श्वासक्रिया संपन्न करुचु आम कौन करिथाउ आम निश्वास त्याग बेले फुसफुस रु आम उत्पन्न अंगारकाम्ल एवं जलीय बाष्प निष्कासित होता है। तेणु फुसफुस को रेचन अंग कहा जाए। आम एठारे जलीय बाष्प एवं अंगारकाम्ल आम शरीर रु निष्कासित होथिबारु आम फुसफुस को गोटे रेचन अंग कहिथाउ। चर्म को रेचन अंग कहीं कहा जाए आम पुणी एठारे मध्य देखा जे शरीर रु वर्ज्यवस्तु किछि परिमाण रे झाल आकार चर्म दे निष्कासित होता है। आमर जो लोम कूप रही लोम कूप पाखरे आम स्वेद नली रही थाए जो ठारे को आम स्वेद बाहरी थाए ताहेले शरीर रु वर्ज्यवस्तु किछि परिमाण रे झाल आकार चर्म दे निष्कासित होता है। झाल तैयारी चर्मर एक कार्य एथिपाई चर्म रे रही स्वेद ग्रंथि पहला स्वेद ग्रंथि बुझे ना ताहले रक्तरु धातव लवण सामान्य यूरिया शोषित होई झाल आकार शरीर निष्कासित हुए तेणु चर्म को रेचन अंग कहा जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आमर मूत्र रे केउ केउ पदार्थ थाए एवं केउ केउ पदार्थ मूत्र रे थिले रोगर सूचना दिए। आमे जतेले पढ़ी जतेले आम रेचन चैप्टर पढ़ुथिले सेति बेले निश्चित भाव में तुम सार माने कहिथिबे जे मूत्र रे जल यूरिया यूरिक एसिड क्रिएटिनिन सोडियम क्लोराइड एवं पोटासियम क्लोराइड आदि रही थाए एवं मूत्र रे गोटे कणिका कण गोटे वर्णकणा यूरोक्रोम नामक वर्णकणा थाए। मूत्र रे जदि हमर ग्लूकोज प्रोटीन रक्त कणिका बिलिरुबिन इत्यादि रहे ताहेले रोगर सूचना दे थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुस्थ लोकर मूत्र ईषत हलदिया वर्ण हेबार कारण कौन कहीं ईषत हलदिया होता है। सुस्थ लोक मूत्र रे थाए आमर यूरोक्रोम नामक वर्णकणा आमर सर्ट क्वेश्चन रे एक मार्किया सर्ट क्वेश्चन रे यह पड़ी थाए। तेणु तमे यूरोक्रोम टी भल करी मन रखिबो। यूरोक्रोम नामक वर्णकणा थिले आमर परिस्रार रंग ईषत हलदिया देखा जाए। तेणु मूत्रर वर्ण ईषत हलदिया होता है। नेक्स्ट आम देखा 3 मार्क सम्मिलित प्रश्न उत्तर 3 मार्क रे पड़ुथिबा क्वेश्चन रो आम डिस्कशन करिबा। रेचन व्यतीत ब्रुकक अन्य कार्य गुड़िक लेख। आम लेखिबा एठारे कोन जे ब्रुकक शरीर रे जल एवं धातव लवणर परिमाण को नियंत्रण करि थाए हैला। तुम एमते स्टेप देकी आम लेखिबो ताहा पुणी रक्त रे अम्ल एवं क्षारीय मात्रा को नियंत्रण करि थाए हैला। बा से मानको सेई जो अम्ल एवं क्षारीय पदार्थ मानक मध्यरे संतुलन रक्षा करिबारे सहायता करि थाए। 3 नंबर हैला जे एहा शरीर रे रक्तचाप नियंत्रण करिबारे सहित एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन क्षरण करी लोहित रक्त कणिका तैयारी करिबारे सहायता करि थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्भिद रे रेचन रो एक विवरणी दिए। उद्भिद रे आम देखा आम प्राणी मानक भलिया कौन स्वतंत्र रेचन अंग नाही। से माने कौन करती चयापचय जात उपजात पदार्थ उद्भिदर विशेष अंश रे गच्छित हो रहे। जेमती कि केतोटी उदाहरण एठा दिया हिछि खैर टानिन झुणा रेजिन अठा गम क्षीर है एगुड़ाक सबू आम देखिले खैर झुणा अठा क्षीर एगुड़ाक कौन होता है ना ताहा गोटे गोटे रेचन पदार्थ अटे एवं ताहा शरीर निष्कासित होता है। विभिन्न तांकर पत्र रे पाचिला पत्र रस माने जो जाइलेम अच्छी सेठारे ताहा गच्छित होइकि रहे नहेले तार अन्य अंश गुड़िक से सबू शरीर बाहरी जाए। नेक्स्ट आम देखा तेंतुली रे थिबा टाटारिक अम्ल मन रखिब सर्ट क्वेश्चन रे भी पड़े। लेंबू रे थिबा साइट्रिक अम्ल सिंकोना गछ रे थिबा क्विनाइन तंबाकू पत्र रे थिबा निकोटिन एगुड़ाक गोटे गोटे उपक्षार है। ताहेले तेंतुली रे थिबा टाटारिक अम्ल लेंबू रे थिबा साइट्रिक अम्ल सिंकोना गछ रे थिबा क्विनाइन तंबाकू पत्र रे थिबा निकोटिन परी उपक्षार मध्य एही परी किछि उत्पाद। नेक्स्ट आउ गोटे पॉइंट हमकु लेखिबार अछि जे उद्भिदर एही वर्ज्यवस्तु गुड़िक जोगु उद्भिद रे विशेष किछि क्षति होई न थाए। मन रखिबा जे सेमानकर कोनोसी क्षति हुएनी। तेणु उद्भिदर मोर प्राणी भली स्वतंत्र रेचन अंगर आवश्यकता न थाए। उद्भिदर स्टोमाटा आमर जेंती श्वासक्रिया द्वारा फुसफुस देकरी आमे जेंती आमर रेचित पदार्थ रेचन होउछि सेमती उद्भिद रे स्टोमाटा देकरी ता श्वासक्रिया संपादन करिबा समय रे तार मध्य गैसीय एक्सचेंज बा आमर अम्लजान एवं अंगारकाम्लर विनिमय से करे। तेणु स्टोमाटा मध्य एक रेचन अंग परी कार्य करिथाय। उत्सेदन प्रक्रिया रे मध्य स्टोमाटा सहायता करे। नेक्स्ट देखिबा आमे 4 मार्क सम्मिलित प्रश्न उत्तर। रेचन कौन ब्रुकक अवस्थिति एवं गठन शरीर रे हेउथिबा विभिन्न चयापचय प्रक्रिया रु जात हेउथिबा वर्ज्यवस्तु शरीर पई अदरकारी हानिकारक। तेणु शरीर रे थिबा विशेष व्यवस्था जोगु एही वर्ज्यवस्तु गुड़िक निष्कासित करी शरीर मध्य परिवेश को प्रदूषण मुक्त रखिथाय। फल कोष रे हेउथिबा विभिन्न जैव रासायनिक कार्यकलापर संतुलन बजाय रही थाए
एवं शरीर सुस्थ होइकी रहे एही प्रक्रिया को कहा जाए रेचन। मनीष रो मध्यछेदा ठीक तलकू उदर गह्वर भितरे मेरुदंडर उभय पार्श्वरे आमर ब्रुकक अवस्थित। ब्रुकक आकृति सिंबमंजी भलिया। सुस्थ वयप्राप्त व्यक्तिर ब्रुकक लंब प्राय 10 रु 12 सेंटीमीटर, प्रस्थ 5 रु 7 सेंटीमीटर, मोटेई प्राय 3 सेंटीमीटर। ब्रुकक भीतर पाखर खालुआ स्थान को हाइलम कहा जाए ना। एवं एही हाइलम मध्य देई आमर 3टी नली सेठारे संयुक्त होई थाए। गोटे होची ब्रुककीय शिरा, ब्रुककीय धमनी एवं मूत्र सारणी है ना। एई 3टी नली आमर ठीक आमर जे हाइलम पाखरे संयुक्त होई रही थाए एवं मूत्र सारणी देई मूत्र ब्रुककरू बाहरी मूत्राशय को आसी थाए। चित्रसह ग्लोमेरुलसर गठन वर्णना कर। नेक्स्ट क्वेश्चन होची चित्रसह ग्लोमेरुलसर गठन। आमे देखिबा जे अंतर्वाही उपधमनी नेफ्रॉन भितरे प्रवेश करी अनेक अति सूक्ष्म शाखा प्रशाखा बा कैसिक नली रे परिणत होई थाए। आमर जो ब्रुक आमे जदि देखिबा ब्रुक भितरे थाए 10 लाख रु अधिक आमर नेफ्रॉन एवं एई नेफ्रॉन रो गोटिए पार्श्वटा कप आकृति विशिष्ट होई थाए जहाको कि आमे कहि थाउ बाउमेन्स कैप्सूल। एवं एई बाउमेन्स कैप्सूल भितर को आमर अंतर्वाही गोटे उपधमनी एफरेंट उपधमनी ता भितर को पसी थाए। पसिला बेल को ताहा आमे देखिबा एंती भाग 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 हेकरी ताहा छोट छोट सूक्ष्म शाखा प्रशाखा मिलेई ताहा अति छोट छोट सूक्ष्म नली रे परिणत होई थाए। एही सूक्ष्म नली गुड़िक पुणी परिशेष रे मिसी जाई आमे ताकू जदि आमे देखिबा पुणी परिशेष रे मिसी जाई गोटिए नली हेकरी ताहा बाहरी जाई थाए। सेही नली को आमे कहि थाउ इफरेंट बहिर्बाही उपधमनी। ताहेले एही नली गुड़िक एही कैसिक नली गुड़िक पुणी मिसी जिबा द्वारा बहिर्बाही उपधमनी जात हुए एवं कैसिक नली गुड़िकर प्राचीर गुड़िक खूब पतला। तेणु एही दुईटी उपधमनी सह संश्लिष्ट कैसिक नलीर एही गुच्छ को कैसिका गुच्छ बा ग्लोमेरुलस कहा जाए। आमे एठारे देखिबा जो गोटे फोटो दिया आइछि सेथिरे अंतर्वाही उपधमनी बहिर्वाही उपधमनी मझिरे आम रहिला ग्लोमेरुलस एवं एई ग्लोमेरुलस टी होछि आमर रक्त रे मिसिक रहिथिबा वर्ज्य वस्तु गुड़िक से कौन करिथाए ना सेठारे से आमर छाणीबा कार्य करिथाए। आमर ठीक जेमति कि आमे समस्ते जानिछु चा तैयारी कला परे माँ माने कौन करंती गोटे चा छणा देकी चा को आमर छाणी की आम गेस्ट मान को दियंती। सेथिरे आमे जेतरे चा तैयारी करूछु चा भितरे आमे चा पत्ती दउछु चीनी दउछु इलाची लवंग इत्यादि जहाँ जहाँ दउछु जो जिनस गुड़ाक आमर अदरकारी जोटा आमर माने जेतेबेले आमे देखिबा सेथिरे जेतरे छाणुछु आमे किछिटा बहलिया पदार्थ मोटा पदार्थ सब रही जाउछि। सेमति एठारे आमे देखिबा जे बृहतणु विशिष्ट किछि कणिका रक्त कणिका इत्यादि ग्लोमेरुलस भीतर को पसी पारे नाही। रक्त रे मिसिकरी पुणी शरीर विभिन्न अंश को चली जाई थाए एवं जो जिनस गुड़ाक रक्त रे मिसी पानी सहित मिसिकरी किछि पदार्थ कोन होई थाए ना ताहा फिल्ट्रेट हेकरी परिश्रवण हेकरी ताहा आमर ग्लोमेरुलस देकरी ताहा आमर जो नली गुड़ाक अछि से नली भीतर को प्रवेश करि थाए एवं जेतेबेले आमर दरकारी पुणी जो जिनस गुड़ाक आमर शरीर पई अति दरकारी मने होछि जेमति कि आमे देखिबा अमीनो अम्ल तापरे आमर रहिला ग्लूकोज कणिका एगुड़िक शरीर पई दरकारी। तेणु सेगुड़िक कौन होता है शरीर आमर किडनी बा ब्रुकक से नली गुड़िक ताकू पुणी शोषण करी शरीर भीतर को टाणी नहीं थाए एवं जल सहित जो अदरकारी पदार्थ गुड़िक शरीर रु बहिष्कृत होता है। ग्लोमेरुलस एवं बायोमेन्स कैप्सूल जेतेबेले उभय मिसी जाती सेतेबेले गठित हुए माल्पिजियान पिंड। मने रखिबो माल्पिजियान नलिका गोटे तमे पढ़िछो इटा एसिलान माल्पिजियान पिंड। ताहेले माल्पिजियान
पिंड गठन करुछि। नेक्स्ट आमे देखिबा ब्रुकक रो गठन एवं कार्य। प्रत्येक ब्रुकक मध्य 10 लक्षरु अधिक सूक्ष्म ब्रुककीय नलिका बा मूत्रजनन नलिका रही। मु तुमको तार आग स्लाइड रे देखै सारलिनी जे सेथिरे केमती हमर 10 लक्षरु अधिक सूक्ष्म ब्रुककीय नलिका अछि बा ताकू आमे मूत्रजनन नलिका भी कहि थाउ। इंग्रजी रे ताकू नेफ्रॉन मध्य कहि थाउ। एवं एही नेफ्रॉन रो गोटिए पार्श्वटा कप आकृति बा गिना सदृश होई थाए, जहा आमर सेई कप आकृति बा गिना सदृश अंशटी ब्रुकक रो बाहर पटकू मुहेकरी रही थाए। प्रति नेफ्रॉन सहित ब्रुककीय धमनी रो गोटिए लेखाए सूक्ष्म शाखा युक्त संयुक्त होई थाए, जहा को कि आमे एफोरेंट अंतर्वाही उपधमनी कहि थाउ। जो पट देकरी आमर रक्त आमर ग्लोमेरुलस पाखकू जाई थाए ताकू आमे कहूछु एफोरेंट अंतर्वाही उपधमनी। पुणी आमे देखिबा एहा नेफ्रॉन मध्यरे प्रवेश करी अति सूक्ष्म शाखा प्रशाखा बा कैसिक नली रे परिणत होई थाए। आमर एमती शाखा प्रशाखा हेकरी आमर ग्लोमेरुलस गठन करे एवं तापरे पुणी सेगुड़िक परस्पर मिसी जिबा द्वारा परस्पर सह मिसी जिबा द्वारा ताहा इफरेंट बहिर्वाही उपधमनी रे परिणत हुए एवं रक्त एबाटू बाहर को गति करि थाए। कैसिक नली गुड़िकर प्राचीर गुड़िक खूब पतला, तेणु एही दुई उपधमनी सह संश्लिष्ट कैसिक नलीर गुच्छ गुड़िकू कैसिका गुच्छ बा ग्लोमेरुलस कहा जाए। बाउमेन्स कैप्सूल हमर ए जो ग्लोमेरुलस टी कोउथि थाए बाउमेन्स कैप्सूल रो भीतर अंश रे जोखी हेकरी रही थाए। रक्त अंतर्वाही उपधमनी देई कैसिका गुच्छ रे प्रवेश करे एवं बहिर्वाही उपधमनी देई हमर ताहा बाहर को जाई थाए। रक्त छणा कार्य पई एही व्यवस्था खूब उपयोगी हेई थाए। ग्लोमेरुलस एवं बाउमेन्स कैप्सूल मिसी मालपिजियान पिंड गठन करती। ब्रुककीय नलिकार केतेक अंश बाउमेन्स कैप्सूल व्यतीत ब्रुकक मध्यरे गुड़ेई हेई शेष मुंडटी मूत्र संग्रह नलिका मध्यरे प्रवेश करि थाए। मूत्र संग्रह नलिका गुड़िक एकाठी होई ब्रुकक मध्यस्थ एक गौहर बा गबणी बस्ती भीतर को खोली थाए। प्रत्येक ब्रुकक रु गोटिए लेखाए मूत्र सारणी बाहरी तली पेटरे थिबा मूत्राशय भितरे प्रवेश करि थाए। आमे जदि देखिबा आमे जदि गोटे चित्र माध्यम रे आमे देखिबा ताहेले हमर एमती हमर रहिछि एठारु हमर मूत्र सारणी देई तली पेटरे थिबा एक मूत्राशय रे ताहा संयुक्त होई रही थाए। एमती हमर राउछि मूत्राशय। प्रत्येक ब्रुकक रु गोटिए लेखाए मूत्र सारणी बाहरी तली पेटरे थिबा मूत्राशय भितरे पसि थाए। मूत्राशय रे मूत्र संचित हे रुहे। जेतेबेले ताहा परिपूर्ण हुए हमकु परिस्रा लागे एवं परिस्रा कला बेलकु सेई मूत्र मार्ग देई शरीर रु निष्कासित हेई थाए। एबे आमे टिके क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा। जहा पढ़िले सेथिरु किछिटा क्वेश्चन दिया आइछि। पिला माने तमे भल की क्वेश्चन गुडा को पढ़ एवं तार आंसर गुडी को कहिबो। शरीर रे पुष्टिसार रो चयापचय फल रे केउ उपादान निर्गत हेई थाए। ऑप्शन ए अंगारक अम्ल, बी यूरिक अम्ल, सी यूरिया ऑप्शन डी ऑप्शन डी डी कौन कहलो बी कि डी? ऑप्शन डी एमोनिया। एमोनिया उत्पन्न हुए अच्छी वेरी गुड। 3 नंबर क्वेश्चन है यूरिया रो संकेत निम्नलिखित मध्यरु केउटी अटे? केउटी हमर यूरिया रो संकेत अटे? हमर ऑप्शन NH CO NH। बी नंबर ऑप्शन है NH2 CO NH2। डी CO2 NH CO2 NH। ऑप्शन डी डी ऑप्शन डी कहिलो कि बी कहिलो? ऑप्शन बी बी
कि भूल अच्छी ऑप्शन डी हाँ डी ऑप्शन भूल अच्छी जान नेक्स्ट अन्य केही ऑप्शन बी NH2CO NH2 ऑप्शन बी वेरी गुड NH2CO NH2 NH2CO NH2 very good केउ जोड़ीटी असंपर्कित चेप्टाकृमि सहित संकोचित धानी बी मनीषर ब्रुकक कि आमर सी जोकर नेफ्रिडिया डी झिंटिका मालपिझियान नलिका केउ जोड़ाटी चेप्टाकुर्मी संकोचिधानी वेरी गुड चेप्टाकुर्मी संकोचिधानी कौन है थाए चेप्टाकृमि सहित कौन हेले ठीक है सांता शिखाकोश वेरी गुड प्रत्येक ब्रुक भितरे प्राय केते संख्यक अति सूक्ष्म ब्रुककीय नलिका रही थाए 5000 रु अधिक 10 लाख रु अधिक वेरी गुड 10 लाख रु अधिक वेरी गुड नेक्स्ट ब्रुककीय नलिकार कप बा गिना आकृतिर पार्श्वटीर नाम कौन बायोमेन कैप्सूल वेरी गुड ग्लोमेरुलस एवं बायोमेन्स कैप्सूल मिसी कौन गठन करती उपधमनी गवणी बस्ती मालपिझियान पिंड एवं हाइलम सी मालपिझियान पिंड वेरी गुड सी मालपिझियान पिंड वेरी गुड मूत्र रे केउ वर्ण कणिका थिबा हेतु सुस्थ व्यक्तिर परिस्रार रंग यूरोक्रोम क्रिएटिनिन यूरोक्रोम फाइब्रोक्रोम यूरोक्रोम वेरी गुड सुस्थ लोकर मूत्र रे ताहार उपस्थिति रोगर सूचना दे थाए क्लोराइड ग्लूकोज यूरिया सोडियम यूरिया यूरिया कौन कहूछ गोटे आंसर को दुईटा कहूछ तमे से ग्रीन कलर अछि कैसे देखो वेरी गुड सेठी छाल तैयारी पाई चर्म रे कौन रही थाए मेलानिन स्वेद ग्रंथि रोम ग्रंथि तैल ग्रंथि हाँ अन्य केही कह अन्य को स्कूल छुआ कह मेलानिन स्वेद ग्रंथि लोम ग्रंथि तैल ग्रंथि आउ थरे स्वेद ग्रंथि वेरी गुड केउटी उद्भिदर उपजात पदार्थ नुहे देख चारिटा ऑप्शन जो दिया है से भितर गोटे उद्भिदर उत्पादित उपजात पदार्थ नुहे निकोटिन यूरिया क्विनाइन खैर ना ना अन्य कहीं चेष्टा करो खैर तो उद्भिदर उत्पादित हुए अन्य कहीं चेष्टा करो ऑप्शन बी यूरिया वेरी गुड यूरिया आमर शरीर रू निष्कासित होता है आमे पूरा देखिले एबे जे परिश्रा माध्यम रे ताहा आम शरीर रू निष्कासित होता है ताहले केतेक गृह कार्य दिया है पिला माने लेखिनियो एवं तमे ताहा करी कि तुम टीचर माननकु देखैबो आम तुम क्लास रे पढ़ाउतबा टीचर माननकु देखैबो प्रथम क्वेश्चन है मालपिझियान पिंड काहाकू कहा जाए नेक्स्ट लेख ग्लोमेरुलस काहाकू कहा जाए एहार कार्य वर्णना कर गोटे चित्र दिखाई एठारे आमर ब्रुकक रे किछिटा लेबलिंग रो खाली स्थान दिखाई ताकू एमती चित्र गोटे रफली डायग्राम कर एवं परे तुमर खाता रे विज्ञान खाता रे फेयर करी सेगुड़िकर नामांकन कर आमर कहीं आम समस्ते जानू जे आमर एग्जाम रे 3 मार्किया विशिष्ट चित्र अंकन कर पड़ी थाए तेणु गोटे चित्र तुमको दिखाई तार नामांकन गुड़िक
କରିବ। ନାମାଙ୍କନ କରିକି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଚିତ୍ର ସବୁ କରିପାରିବ ଏବଂ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆହେଇଛି, ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ନେଫ୍ରିଡିଆ କାହାର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ? କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ରେଚନ ଅଙ୍ଗକୁ ଆମେ ନେଫ୍ରିଡିଆ କହିଥାଉ? ମାନେ ଚେପ୍ଟାକ୍ରୁମିର ରେଚନ ଅଙ୍ଗର ନାମ କଣ? ଏଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତମର ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ରେଜିନ୍ ଏବଂ ଟାନିନ୍ ଭଳି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁଠାରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ? ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥାଏ? ତାର ମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ରହିଥାଏ? ବୃକକର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ରହିଥାଏ ଲେଖିବ। ବୃକକ କିପରି ଶରୀରର ଅନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ? ଆମେ ପଢିଛୁ ଆମର 4ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ବୃକକ କିପରି ଶରୀରର ଅନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ। ଏସବୁ ତମର ସ୍କ୍ରିନଶଟ କରିକି ରଖ, ନହେଲେ ନିଜେ ଲେଖିନିଅ ରଫ ଖାତାରେ ଏବଂ ତାକୁ କରି ତମର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତମେ ଦେଖେଇବ ଠିକ କରିଛ ନା ନାହିଁ। ଆଜିର ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏଇ କ୍ଲାସରେ ଆମର क्वेश्चन आंसर डिस्कशन थिला। एठारू तमे 4 मार्किया 3 मार्किया 2 मार्किया 1 मार्किया क्वेश्चन सब देखिलो। तमे बही को सबु पहले बही पढ़िबो। बही जो आमर अच्छी बहीटी माने समस्ते प्राय पिला माने मु देखुची तमे माने टेस्ट पेपर फॉलो करूछ। टेस्ट पेपर रे मध्ये किछिटा आमर भूल थाए, जोटा कि आमर माने बही रो सबु जिंस आमर करेक्ट बोली आमर विचार करा जाउची। तेणु समस्ते बही को लाइन बाय लाइन तुम टिके पढ़ एवं ताकू तमे मने रखिबा पई चेष्टा करो। जो क्लास तुम जो दिन जो क्लास होची थरे जाइकरी घरे तमे ताकू आउ थरे रिवीजन करो। तमे देखो ताकू लेख किछि जहा सब तुम सार माने इम्पोर्टेंट कोइकरी कहिसंती सेगुडी को तमे तुम खाता रे टिपी रख। देखिबो निश्चित भाबरे तमे तुमर बोर्ड परीक्षा रे कृतकार्य हबो। निश्चित भाबरे तुम समस्तंकर रिजल्ट भल हबो। तमे जे पर्यंत बही फॉलो करिवो नाही, जेते टेस्ट पेपर कले मध्ये थरे थरे देखा जाए जे टेस्ट पेपर आमे एते गुडे तार माने प्रैक्टिस कले मध्ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कले मध्ये सब आमे कृतकार्य हेला बेल को टिके हमकु कष्ट साध्य हो जाउची। तमे बही पढ़ो, निश्चित भाबरे कृतकार्य हबो। बही ही होची हमर सार। बही समस्ते हमर संध्या समय रे ताकू टिके थरे थरे जहा पढ़ाउची जो दिन जहा पढ़ाइला से सबू क्वेश्चन देकरी तमे बही को पढ़ी सारला परे सेठारू क्वेश्चन प्रिपेयर करो। निजे क्वेश्चन बनना तैयारी करो एवं सेही क्वेश्चन गुड़िकर आंसर तमे लिखिबा पई चेष्टा करो। निश्चित भावरे तमे माने कृतकार्य हो। एतिकी कहि मु रहूची। धन्यवाद।